السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہاری شکیل ہر جگہ اسے تلاش کر چکے ہیں اور آج 15 دن ہو چکے ہیں، کوئی ثبوت کوئی خبر نہیں ملے۔ آخر وہ گیا تو کہاں گیا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کرنا سر سے بھی بات ہوئی، فوج کو ہر جانب پھیلایا ہے لیکن کوئی خبر نہیں آئی۔ زین کی تو کسی سے ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی، اس کے چچا سے بڑھ کر اور کون دشمن ہو سکتا ہے؟ یزدان تنفر سے بولا، سفیر اب ایک ہی حل ہے، اس جانب جو گاؤں ہے ہمیں وہاں پتہ کرنا چاہیے، ایک ایک گھر کو چیک کرنا چاہیے، کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین کی گھمبیر آواز گونجی۔ یزدان، سفیر، آریان سب جھٹکے سے مڑے تھے۔ کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ ہم تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں اور تم ہو کے نہ جانے کہاں دفع ہو گئے تھے۔ یزدان تیزی سے اس کی جانب آیا، الفاظ میں بے قراری سمٹی تھی۔ زین مسکرایا۔ یزدان کی فکر مند نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھا، کچھ مصروفیات تھی اس لیے وقت نہیں مل پایا۔ مطلب؟ سفیر نے استنبے سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ قیوم چچا اور میں جس طرف سے گرے تھے وہاں جنگل تھا، میں نیچے کی جانب گر گیا تھا پر قیوم چچا کو جنگلی جانوروں نے زخمی کر دیا تھا اور شایان ساگر کا پھیلایا رائتا مجھے ہی سمیٹنا تھا۔ اور قیوم چودھری؟ سفیر نے بروج گئی۔ ایس پی وحاص سلطان سے پوچھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا۔ زین نے شانش گئے۔ مطلب تم دونوں اس مشن میں ساتھ تھے؟ سفیر نے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ آف کورس۔ انت داخل ہوتے وحاص سلطان نے جواب دیا تو یزدان کا دل چاہے ان دونوں کا منہ توڑ دے۔ سالے کمینے! یزدان اس کی جانب بڑھا جب وحاج نے اس کی کلائی پکڑ کر گھمائی اور اس کی گردن کے گرد شکنجا کسا۔ چھوٹے بچے سالے کو عزت سے مخاطب کرتے ہیں، اس نے سرگوشانہ کہا اور یزدان کا دماغ گھوما تھا۔ تیری میں جان لے لوں گا۔ یزدان بھی بلیک بیلٹ تھا، اپنا داؤ کھیلتا وہ وحاج پر حاوی ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے لگے، جبکہ سفیر اب تک اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تجھے ایک بار بھی زر فشاں کا خیال نہیں آیا؟ اور دانت پیسے تو تھا تو فکر نہیں تھی، اور میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا اس لیے کال نہیں کر سکا۔ تو بتا شجیحہ کیسی ہے؟ بکواس نہ کر، کوئی حق نہیں ہے تیرا، اور اپنی شکل گم کر یہاں سے۔ زین مسکرا کر زبردستی اس کے گلے لگا تھا۔ میرا ہی تو حق ہے، تجھے گولی لگی تھی کمینے، میرا دل پل پل پریشان تھا کہ تو کس حال میں ہوگا، اور پھر زر فشاں اور شجیحہ دونوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اور جانتا ہے کہ تو میجر سفیر بن گیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سفیر کے گلے لگا تھا۔ مجھے تجھ پہ یقین تھا تو انہیں سنبھال لے گا۔ اور زر فشاں میری بیوی ہے، تھوڑی کمزور تو ہے لیکن ایک فوجی کی بیوی کا انکشاف اسے مضبوط بنا چکا ہوگا۔ کوئی بہادر نہیں بنی، کل سے وہ بخار میں بری طرح تپ رہی ہے اور پچھلے دنوں بھی بیمار رہی ہے۔ زین کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ شجیحہ کیسی اور کب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی؟ اسے 1-2 دن اور لگیں گے اور کل باسط بھی ڈسچارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں۔ زین ان دو پاگلوں کو دیکھتا باہر بھاگا تھا، اس وقت اپنی زندگی کے پاس پہنچنا تھا۔ کہاں گیا زین؟ یزدان وحاج کو پیچھے دھکا دیتا سفیر کے پاس آیا۔ وحاج ہونٹ سے خون صاف کرتا بیڈ پر ہی گر گیا تھا۔ وہ مزید پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے چلا گیا، ورنہ اس کا میں آج منہ توڑ دیتا۔ آئی تھنک تم دونوں کو اپنی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ کتوں کی طرح لڑ کر تم انہیں پریشان کر دو گے۔ اس لیے چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ سفیر نے دونوں کو دیکھتے کہا تو وحاج یزدان کے منہ پر پنچ مارتا باہر نکل گیا۔ کمینہ سالا، وہ گال سلاتا اس کو کوس کر رہ گیا۔ وہ اپنے ماں باپ سے مل کر اوپر کمرے میں آیا تو متاع جان نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زر فشاں؟ بے قرار بوجھل سا لہجہ۔ زر فشاں کسی خواب سے جا کر سامنے دیکھنے لگی اور پھر نظر وہیں پر جم گئی۔ زین؟ وہ اسے دیکھتے خوف سے بڑبڑائی۔ سیاہ زردہ آنکھوں میں زندگی کی رمق روشن ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ زین چودھری کو دیکھ سکے گی۔ وہ سیاہ الجھے سے لباس میں تھی جب اس نے زر فشاں کو مخمور آنکھوں سے دیکھا۔ نکاح کی پیاس بجھنے لگی تھی۔ آج 15 دنوں بعد اس کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا، اور ان 15 دنوں میں وہ ہر لمحہ خود کو اذیت میں محسوس کرتی رہی تھی۔ آپ میرے سامنے ہیں زین، اس نے تسلی چاہی۔ چھو کر دیکھ لو، اس کی بھاری آواز فضا میں گونجی تو زر فشاں کا بے قرار دل پرسکون ہونے لگا تھا، گمان پر یقین کی مہر لگنے لگی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگ گر اپنی باہیں اس کے گرد حائل کرتی شدت کریہا سے روئی۔ اس کا نازک سا سر زین چودھری کا احساس دلا گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی ہے۔ زین نے فوری سے سمیٹ لیا، اس کے گرد بازو باندھتا وہ گہرا بوجھل سانس فضا کے سپرد کر گیا تھا۔ آج 15 دن بعد وہ لمس محسوس ہوا تھا، وہ کیسے قرار محسوس نہ کرتا۔ مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ آپ کیوں چلے گئے تھے زین؟ کیوں تنہا کر گئے اپنی زری کو؟ ایسے کوئی کرتا ہے؟ آپ بہت ظالم نکلے زین۔ اس کی بھیگی آواز پر زین نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ زندگی پر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے بھی تو وعدے نبھائے تھے، پھر میں کیوں کر نہ نبھاتا؟ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس نے بھیگی نم آنکھوں کو چھوا۔ زر فشاں کے آنسو ایک بار پھر بہے۔
बस अब रोना नहीं है, अब तो आ गया हूँ। ऐसे रोती रहोगी तो मैं खुद पर इख्तियार नहीं रख पाऊंगा। जुल्फ़िकार के चेहरे की जाने झुके वह संजीदगी से बोला तो एक पल के लिए वो काम गई थी। ज़ैन ने इसका सर अपने सीने पर रखा और उसकी पुश्त से हिलाने लगा। मुझे आदत नहीं रही आपके बगैर जीने की ज़ैन। तुम मैंने कब कहा मेरे बगैर जियो। आप कहते नहीं है लेकिन सितम ढाह के चले जाते हैं। पहले भी आपने ऐसे ही किया था और अब भी, बल्कि अब तो आपने मेरी जान लेने की ठान ली थी। अगर चंद दिन और ना आते तो शायद मेरी लाश ज़ैन सख्ती से इसे खुद में बीच दिया। जुल्फ़िकार को अपनी हड्डियाँ चटकती महसूस हुई थी। ज़ैन वो सिसकी थी। मरने की बातें मेरे सामने करोगे तो अपने हाथों से जान ले लूँगा। ज़री सहम गई थी और ऐसा भी कहेगा उसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुम्हारा ज़हन तुम्हारे मामले में बड़ा खुदगर्ज है। तुम्हें कभी सख्ती से छू भी नहीं सकता। कजा कि तुम्हारी जान ले। सख्त ग्रिफ्त नरम होने लगी और ज़री के दिल में मुरझाते फूल एक बार फिर खिल उठे। उसने सर बुलंद करके डुबडुबाई आंखों से उसे देखा जहाँ उसके लिए नरमी ही नरमी थी। ज़री इसका बोझा मुस्कुराता चेहरा अपनी निगाह में जज्ब करने लगी। ज़ैन ने नरमी से झुककर इसकी गालों की नमी चुरा ली। गुलाबी गालों में सुर्खी पड़ने लगी जो उसकी आंखों में खुमार की दबीज लहर बिछाने लगी। तुम ज़ैन चौधरी का सुकून हो, इस बेचैन दुनिया में आखिरी राहत हो मेरे लिए। मैं तुम पर जुर्म उठाने से पहले मरना पसंद करूंगा। आपके ज़रिए आपको इजाज़त देती है ज़ैन कि आप इस पर हर सितम करें। ऐसी इजाज़त नहीं देते और मुझ जैसे शख्स को तो बिल्कुल भी नहीं, जो तुम्हें एक दहती निगाह से देखने का भी रवादार ना हो। उसने नरमी से उसकी पेशानी को छुआ और ज़री का वजूद पुरसुकून हुआ। मगर मैं देना चाहती हूँ, सितम की इजाज़त देकर मैं आपसे कभी ना फासले लाने का वादा भी लूँगी ना। इसकी सौदेबाजी पर पहले हैरान हुआ फिर मुस्कुराया। कभी कभी ये छोटी सी लड़की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। इसके हम को शिद्दत से छूता वो जुल्फ़िकार की सांस देख आ गया था। ये सौदेबाजी नहीं है, वादा लेने का तरीका है। उसने जल्दी से इसका मजबूत सीने में मुँह छुपाया जैसे इसकी मजीद गुस्ताखियाँ सहने की हिम्मत ना हो। वादा हो या सौदेबाजी, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। देकर ही तो ले रही हूँ। उससे चेहरा हनूस छुपाए बज़ाहिर मजबूत बने कहा। अगर मुझे और चाहिए हुआ तो? वो निचला लब दबाए गंभीरता से बोला। और क्या चाहिए? उसने सहम के ज़हन को देखा। एक इजाज़त। इसके बदले तुम्हें अपने ऊपर सितम की इजाज़त भी नहीं देनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। उसने बिना सुने नफी में सर हिला दिया। सुन तो लो। ज़री ने सवारी निगाह से उसे देखा जिसमें तंबी भी थी। रस्म के मुताबिक अगर कभी निकाह ज़ैन उसके सीने पर दोनों हाथों से थप्पड़ मारती चीखी थी और वह कह के लगाता इसके हर सितम को सहता जा रहा था। मैं आपकी जान ले लूँगी और इसकी तो इससे भी पहले लूँगी। इतनी नाजुक सी हो और जान लेने की बात करती हो। इसके नाजुक सरापे पर चोट किए वो बगैर मजीद हंसने लगा। ले भी लूँगी मैं। उसने एक पंच उसके सीने पे मारा तो वह इसे बाहों में समेट गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हें मेरी जान लेने का मौका मिलेगा, ना मैं फराहम करूँगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस मासूम सी लड़की के साथ गुजारने का अहद कर चुका हूँ और अपने रब से ताउम्र साथ की दुआ भी मांग चुका हूँ। इसके यूँ इकरार पर जुल्फ़िकार का रोम रोम मसरूर हुआ। मुझे लगता था कि गांव के चौधरी बहुत जालिम होंगे, लेकिन आज आपने मेरी हर सोच को गलत ठहरा दिया। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब आपने मुझे अपनी माँ से बचाया था। मेरी मोहब्बत इसी दिन इश्क की मेराज को छू लिया था और रफ्ता रफ्ता आपकी ज़री दीवानी होती गई और आज ये मुकाम आया कि आपके बगैर रहना जान निकलने जैसा है। लेकिन एतबार के मामले में थोड़ी कच्ची साबित हुई है। उसने शिकवा किया। खुद से ज़्यादा एतबार हो गया आप पर, तभी तो यकीन था कि आप लौट आएंगे। उसने फौरी कहा। ज़ैन ने मुस्कुरा कर उसके गम को सहलाया। आप तो नहीं जाएंगे छोड़कर? जुल्फ़िकार ने हसरत से पूछा। कोशिश तो यही है कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वतन का एक ज़र्रा भी मुझे अगर पुकारेगा तो जाना पड़ेगा। उसने साफ गोई से कहा। वतन की खातिर कभी नहीं रोकूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी ज़िंदगी। उससे जुल्फ़िकार के हम को छुआ। एक ख्वाहिश को पूरा करोगी? आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। वही लिबास, वही झुमके और वही चादर रोड़े मेरे सामने आ जाओ। ज़ैन वो रोहानसी हुई थी। जो जुल्फ़िकार वो मसनूई खूरी से नवाजे बोला तो पाँव पटकती वहाँ से वार्डरोब की जानिब बढ़ी। इस लिबास को आज के बाद मैं आपकी नज़रों से ओझल कर दूंगी। पता नहीं आपको इस आम से लिबास में क्या नज़र आता है। तुम इस लिबास को कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस लिबास में तुम्हें देखकर वो लम्हा याद आता है जब तुम मुझे मिली थी और यही लिबास पहनकर यहाँ से गई थी। मुंह बनाती अंदर पड़ी और कुछ देर बाद लिबास बदल कर आई। नाजुक सिरापे पर फराक पूरी आपोताप से खिल उठी थी। ज़ैन ने कदम लेते आगे आए और उसको शानों से थामकर ड्रेसर की चेयर पर बैठा दिया। अपनी जेब से उसने चेन निकाल कर इसके गले में पहनाई और कानों में झुमकियों को सजा दिया। ज़री के जहन में भी वो लम्हात ताज़ा होने लगे थे, लेकिन उलझन अब फिर बढ़ी थी। आप ये सब चीज़ें रखते कहाँ पर हैं? हर बार मैं ढूंढने में नाकाम हो जाती हूँ। ज़ैन ने उसे देखा और फिर ड्रेसर का एक दराज खोलकर इसमें से बॉक्स निकाला। ये बॉक्स। ज़ैन ने वो लकड़ी का बॉक्स खोला। इसमें मौजूद एक परत को हटाया। गोया
दरवाज़ा खोला हो। इसके अंदर ज़ुल्फ़िशा की चूड़ियाँ थी जो वो निकालना भूल गया था। ज़ुल्फ़िशा की हैरत बजा थी। कीमती चीज़ों को खुफिया खाने में ही रखा जाता है, जैसे तुम्हें दिल में छुपा कर रखता हूँ। उसे ज़ुल्फ़िशा की नाजुक कलाई में वो चूड़ियाँ पहनाई और उसकी कलाई को लबों से छू लिया। दुनिया के सब ज़ेवरात एक तरफ और तुम्हारा ये ज़ेवर एक तरफ। इतनी आम सी चीज़ें हैं ये ज़ैन, और आप इन्हें न जाने कौन से ख़ज़ाने समझ लेते हैं। इन खजानों की कोई कीमत नहीं मेरी जान। उसने ज़ुल्फ़िशा की कनपट्टी को छुआ और उसे चेयर से खड़ा किया। घनी पलकों को झुकाए वो ज़ैन के मुकाबले हुई। इसके चेहरे पर झुकता मोहब्बत की अदायगी नहायत दिलफरेबी से करता चला गया। ज़ुल्फ़िशा ने दहल कर इसके कॉलर को पकड़ा। ज़ैन ने मखमूर आंखों से उसे देखा। लम्हे एक बार फिर इनके दरमियान आ ठहरे थे। एक रस्म के तहत शामिल होने वाली वो लड़की, तोहमत लगी वो लड़की ज़ैन चौधरी की ज़िंदगी का महवर बन गई थी। मैं मखदूम चौधरी आज ये ऐलान करता हूँ कि गाँव में जो फरसूदा रस्म का आगाज़ मेरे बाप ने किया था, इसका खात्मा मैं आज खुद करता हूँ। आज के बाद कोई लड़की रस्म के तहत किसी सरदार के हुक्म की भेंट नहीं चढ़ेगी। गाँव में इंसाफ पसंदी नाफज होगी जो ज़ैन चौधरी का शेवा रहा है। गाँव के कमी कमीन हर मज़ारे को उसका हक दिया जाएगा। शायद सागर ने जो आपके ख़ानदान वालों पर जुल्म ढाया, इसका इंसाफ भी रफ्ता रफ्ता होगा, लेकिन अब हमारी यही कोशिश होगी कि कोई लड़की बेचा कत्ल ना हो। वह छत पे खड़ी थी, सफ़ेद पाँव को छूता फराक पहने, हाथों में सिल्वर चूड़ियाँ और पाँव में सिल्वर खुस्सा। गोया पूर उसने ज़ैन की पसंद को अपनाया था। लबों पर डार्क पिंक शेड उसकी धोतिया रंगत को और निखारा था। खुले नम सिल्की बालों में अब भी ज़ैन का सरसराता लम्स महसूस हो रहा था। तभी वो आज हवा के ज़ोर पर बिखरते मुस्कुरा रहे थे। आज ये पंचायत इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी जो ज़ैन से इसने मनवाई थी, बल्कि ज़ैन ने खुद इस बात का ऐलान किया था। उसने तशक्कुर से आसमान की तरफ देखा और एक जानिब कुर्सी पर बैठे अपने बाप को, जो आज चौधरी मखदूम के बराबरी के मुकाम पर बैठे थे। एक जानिब ज़ैन भी था जो अफजरी की निगाह के आसार में था। ज़ैन ने निगाह का ताक़ुब किया तो वो झट से पीछे हुई। कुछ देर बाद पंचायत बर्खास्त हो गई थी, लेकिन अब इसके नीचे जाने का मूड नहीं था। तभी ठंडी हवा में बिना किसी शाल स्वेटर के वो छत पर चहक रही थी। ठंड का तासुर महसूस हुआ था। वो कप कपाती आंखें बंद की अपने बाजू से हिलाने लगी, जब किसी की मजबूत बाहें इसके गिर्द फैली। किसी ने इसे अपनी चादर में लपेट लिया। दोनों एक चादर के हिसार में थे। ज़ैन, वो बंद आंखों से लर्जी। जी मेरी ज़िंदगी। ज़ैन ने इसकी बालों की खुशबू को सांसों में भरा। क्यों इन परियों को हसद में मुब्तला करती हूँ? अगर गुस्से में किसी परी ने चुड़ैल से तुम्हारा सौदा कर दिया तो मैं कहाँ तुम्हें तलाश करता रहूँगा। उसके कंधे पर थोड़ी जमा उसने हाथ पेट पर बांध लिए। ज़ुल्फ़िशा मसरूर हुई थी। आज भी मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो परी ये चुड़ैल मुझसे हसद में मुब्तला हो जाए। मेरी नज़र से देखो तो हर परी हसरत में मुब्तला हो, क्योंकि ज़ैन चौधरी इस परी को अपनी सांसों की तरह रखता है। इसके गाल को सिलाए वह गंभीरता से बोला। मसरूर हुई थी। खरी पलकों को झुकाती वह इस वक्त कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। लम्हे मैनी खैजी खामोशी की नज़र होने लगे जब ज़ुल्फ़िशा ने ज़ैन का फंसू तोड़ा। शुक्रिया ज़ैन। किस लिए? उसने बुरुज गई। आज आपने मेरी इस ख्वाब को पूरा करके लाखों लड़कियों की ज़िंदगी बचाकर मुझे अपना मकरूज़ बना दिया। मकरूज़ नहीं, तुमने ज़ैद चौधरी को रूम रूम में अपनी मोहब्बत का जाम फैलाया, और इस फरसूदा रस्म का खात्मा भी तो ज़रूरी था। उसने रुख मोड़कर ज़ैन को देखा जो मसरूर सा मुस्कुरा रहा था। ये फरसूदा रस्म हमारे हक़ में बेहतर साबित हुई थी, लेकिन फिर भी इस रस्म का खात्मा ज़रूरी था, क्योंकि हर ज़ुल्फ़िशा की किस्मत में ज़ैद चौधरी नहीं होता। ज़ैन ने इसके खम पर अंगूठे का दबाव डाला। हमेशा की तरह वो गुलाबी पड़ी थी। तुम्हारा ये गम हर मर्तबा मुझे नए सिरे से अपना असीर कर देता है। झुककर उसके गम पर आज वह पुरशिद्दत लफ्ज़ छोड़े उसने ज़ुल्फ़िशा को खुद पे खींच के इन ठंडी हवाओं से छुपा लिया जो उसके वजूद को छूने की गुस्ताखी कर रही थी। इसकी जुनूनियत को समझ चुकी थी, तभी मुस्कुराकर सीने में मुँह छुपा गई थी। बासत वो बेड से उठने लगा जब सनम तेज़ी से आ गई। वो अभी अंदर आई थी। आप मुझे बुला लेते, खुद क्यों उठ रहे थे? मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ। वो चिढ़कर बोला तो सनम मुस्कुराई थी। कहाँ से ठीक हुए हैं बताएं ज़रा। वो सख्ती से बोली तो बासत ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो वो सीधा इसके ऊपर गिरी। बासत पीछे की जानिब लेटकर सनम का सर भी अपने सीने पर रख चुका था। सनम ने बौखलाकर उठना चाहा, लेकिन बासत कमर के गिर्द बाजू हायल कर चुका था। अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, वह गंभीरता से बोला। मैंने सबूत नहीं मांगा था, अब छोड़े मुझे, कोई आ जाएगा, आपको दर्द होगा। वो खफा से गोए। बासत का ख्याल कि उसने उठना चाहा। जब उसने सनम का रुख बदला तो वो बेड पर दूसरी जानिब लेटी। सबूत ज़रूरी था, वरना तुम तो ऐसे दूर भागती हो जैसे मैं कोई अछूत हूँ। अब बताओ क्यों ऐसा रवैया अपनाया मैं? कैसी बातें कर रहे हैं बासत? वो दहल कर बोलती सीधी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पिछले 5 दिन से मैं तुम्हारा रवैया नोट कर रहा हूँ। जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, इससे पहले तुम गाँव चली गई थी, और अब जब से वापस आई हो उदास और मुझसे दूर दूर रहती हो। जल्दी से बोलो।
ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہارے بارے میں سب جان جاتا ہوں۔ صنم نے اسے دیکھا اور بھیگتی ہوئی آنکھیں رگڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ صنم باسط سہارا لیے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پاس کیا۔ وہ باسط کا سہارا پاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ سب میری وجہ سے ہوا تھا، کاش ہم اس دن وہاں نہ جاتے، کاش میں بھائی کی باتوں میں نہ آتی، کاش کہ میں سب کچھ نہ کرتی۔ آپ نہیں جانتے میں پل پل مری تھی، بھائی کی وجہ سے پاپا چلے گئے، سب ختم ہو گیا، اور اس سب میں کہیں نہ کہیں وجہ میں بھی تھی۔ پھر وہی باتیں، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ صنم کو اس حادثے سے نکالنے کی بہت کوشش کر چکا تھا، لیکن شاید وہ سنبھلنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی وہ تکلیف میری آنکھوں سے نہیں جاتی باسط، میں کیا کروں؟ رات کو میری آنکھ وہ سب یاد کر کے کھل جاتی ہے۔ آپ کو کھونے کا خیال ہر وقت مجھے ہلکان کیے رکھتا ہے۔ صنم میری طرف دیکھو۔ اس نے صنم کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا یہ حادثہ ہم دونوں کے اختیار میں تھا؟ صنم نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم خود کو کیوں مورد الزام ٹھہراتی ہو؟ سب میرا ہی قصور ہے، وہ ضدی پن سے بولی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں بلکہ میرا قصور ہے۔ اس دن میں جھمکے گھر ہی لے آتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن میں ہی تمہیں وہاں لے کر گیا تھا، جھمکوں کے بدلے گولی کھا لی، پر جھمکے پھر بھی نہیں آئے۔ اس کا انداز پرمزہ ہوا تو صنم نے خفگی سے گھورا۔ مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، خواہش آسائشیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ کی زندگی، آپ کا میرے ساتھ ہونا میری زندگی کا سکون ہے، اور ایسی ہزار خواہشیں میں آپ کے سر سے وار کر پھینک دوں گی جس کے بدلے مجھے آپ کو کھونا پڑے۔ تمہاری کوئی خواہش، کوئی آسائش کیوں کر رہا ہو؟ تم حقدار ہو صنم، تم محبت کی چاہتوں کی سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تمہارا شوہر ہر خواہش، ہر آسائش کو پورا کرے گا۔ اب خود کو ہلکان مت کرو، سمجھ لو کہ وہ ایک حادثہ ہماری محبت کو امر کر گیا۔ اب کوئی شکوہ، کوئی شکایت باقی نہیں ہے، فقط تمہاری اور تمہاری محبت کی طلب ہے۔ اس کی پیشانی کو چومتے باسط نے پرشکین لہجے میں کہا۔ صنم نے سکون سے آنکھیں موندی اور اس کے سینے پر سر رکھا۔ باسط اس کی جانب جھکنے لگا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ صنم بدک فاصلے پر ہوئی اور سانس بحال کرتی رخ موڑ گئی۔ یقیناً روز میڈم ہوگی، باسط نے دانت پیسے تو صنم خود کو سنبھالتی مسکرائی تھی۔ تمہاری بھابھی ہمارے رومانس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس نے صنم کی ہنسی کو دیکھتے شکوہ کیا۔ باسط کیا بول رہے ہیں؟ روز کیا سوچے گی؟ سوچنے دو، ذرا اسے احساس تو ہو، باسط ڈھٹائی سے بولا جبکہ صنم راضی ہوئی۔ پاس میں اندر آ جاؤں؟ صنم نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں روز سبوں پر شریر مسکان لیے کھڑی تھی۔ گولڈن سلکی بالوں کی پونی میں باندھے وہ نازک سی لڑکی آریان کی ہمراہی میں مزید خوبصورت ہو چکی تھی۔ تم کسی دن مجھ سے مار کھاؤ گی روزینہ میڈم۔ باسط سر ڈونٹ کال می روزینہ، اس نے انگلی اٹھائے خفگی سے تنبیہ کی۔ تو اور کیا کہوں، ہمارے اسپیشل مومنٹ کی دشمن؟ باسط صنم نے بے سختیوں سے پکارا تو اس سے گھور کر اسے دیکھا۔ صنم نے لجاجت سے اسے منع کیا جبکہ روز کھلکھلائی تھی۔ آپ کے اسپیشل مومنٹ ختم نہیں ہوتے تو میرا کیا قصور؟ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ صنم اپنی جگہ خفت سے لال ہوئی۔ اب فرمائیں آپ کی یہاں تشریف آوری کا مقصد؟ وہ خالص اردو میں بولا تو روز نے ناسمجھیدگی سے اسے دیکھا۔ صنم سر کیا کہہ رہی ہے؟ وہی جو تمہیں قطعی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے فی الحال یہاں سے تشریف آوری لے جاؤ، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ روز کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ روز پریشان مت ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزدان سے اس کی شکایت کرو، پھر یہ سدھرے گا۔ اندر آتے آریان نے روز کے گرد اپنا بازو پھیلایا تو صنم مسکرائی تھی۔ وہ آگے بڑھتی بھائی کے سینے سے جا لگی۔ باس صاحب کے تو نہرے ہی ختم نہیں ہو رہے، اتنے تو میری بیوی نہرے نہیں دکھاتی جتنا باس دکھا رہے ہیں۔ وہ شکوہ کرنا ہوا آریان محض مسکرایا جبکہ روز لب دبا کر ہنسی چھپا چکی تھی۔ کیسی ہو؟ آریان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جبکہ روز اب جتاتی نظر سے باسط کو دیکھ رہی تھی جو منہ بنائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ باسی صاحب، آپ میری بیوی کو پریشان کرنے کے خواب دیکھنا اب چھوڑ دیں، کیونکہ روز کو باقی اردو سکھانے کا کام اب میرا ہے۔ مت بھولو کہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں۔ روز اپنے بال چھٹکتی اترائی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے بھائی، ورنہ باسط تو میری بھابھی کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے۔ صنم صاحبہ، آپ کو میرے ساتھ ہی رہنا ہے، پارٹی مت بدلیں ورنہ پارٹی بدلنے کا انجام آپ کو پتہ ہوگا، باسط نے گویا سے جتایا تھا جبکہ صنم گھبرائی تھی۔ صنم کبھی بھی پارٹی نہیں بدلے گی۔ کیوں صنم؟ آریان نے صنم کو دیکھتے تائید چاہی۔ میں بدلنے دوں گا تو بدلے گی۔ جو شخص مجھے میرے ہر گناہ کے ساتھ اپنا سکتا ہے، میں اس کا ساتھ کبھی مزاح میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو باسط کا دل مطمئن ہوا تھا جبکہ آریان بہن کی سمجھداری پر دل سے مسکرایا تھا۔ باس اتنے نخرے تو روٹھی سینہ نہ کرے جتنے آپ کریں۔ باسط نے بے بسی سے یزدان کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ روٹھی سینہ نہیں، تعبیر کا نام لو باسط، پھر شاید یزدان مان جائے۔ سفیر کی غیر متوقع آواز پر باسط نے سامنے دیکھا جہاں وہ مختلف بیگز لیے اندر داخل ہوا تھا۔ میری بیوی کو درمیان میں لانے کی کوشش نہ کرو، یزدان نے دو ٹوک انداز میں کہا تو باسط نے کان کی لو کو چھوا۔ یزدان نے سر جھٹکا جبکہ سفیر مینی خیزی سے مسکرایا تھا۔ بیگز ٹیبلز پر رکھ کر سفیر آگے بڑھ کر باسط کے گلے لگا جو ویل چیئر پر موجود تھا۔ باسط خوش دلی سے اس سے ملا تھا۔ اپنے بھائی کو فی الحال میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو ورنہ ایک آدھ گولی میں اس کے سینے میں ضرور اتار دوں گا۔
آپ اپنے باسط بیٹے کو ماریں گے؟ باسط کی آواز بھر آئی جبکہ سفیر اس کی نوٹنکی سمجھ چکا تھا۔ ایموشنل بلیک میل کرو گے تو منہ توڑ دوں گا۔ یزدان نے باسط کے کالوں کو جکڑے مکہ فضا میں بلند کیا لیکن پھر ایک دم باہر نکل گیا۔ باس میری بات سنیں۔ باسط نے مدد طلب نظر سے سفیر کو دیکھا جس نے شانے اچکائے۔ کبھی وقت پہ کام نہ آنا۔ باسط 20 چیئر کو حرکت دی اس کے پیچھے گیا۔ باس میری حال اجازت نہیں دے رہی ورنہ میں آپ کو اپنے طریقے سے مناتا۔ اگر آپ نہ مانے تو پھر سوچ لیجیے گا کیا کرو گے، بولو۔ اب اپنی جان کون سے عذاب میں ڈالو گے؟ باسط ایک پل کے لیے خاموش ہے۔ میں سفیر کے ساتھ چلا جاؤں گا، اس نے کچھ پل سوچ کر کہا۔ تمہاری جان لے لوں گا اگر مجھے چھوڑ کے جانے کی بات کی۔ یزدان تیزی سے موڑا اور اس کے گال پر پنچ مارا۔ سفیر گھبرایا تھا۔ یزدان اس کی حالت خراب ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا اس کمینے کو، جو اس نے ہماری حالت خراب کی تھی نا، اس کے بارے میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑے بولا جبکہ باسط یزدان کے کندھوں پر ہاتھ جماتا کھڑا ہوا یزدان کے سینے سے لگا۔ یزدان کی آنکھیں بھیگی تھی۔ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، کیا ہوتا میرا؟ تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دیتا؟ بس باس غلطی ہوگی، اب معاف کر دے۔ باسط بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ معافی کے کچھ لگتے، سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ بیوی سے دور ہو رہے کی سزا نہ دینا باس، یہ کمی روز اچھے سے پوری کر دیتی ہے۔ روز کو دیکھ کر اس نے مزاح کا رنگ دیا۔ آپ اسی لائق ہے۔ وہ منہ بناتی آریان کے بازو سے لگی تھی۔ یزدان مسکرایا تھا اور باسط کو سینے سے لگاتا مسرور ہوا تھا۔ سفیر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے اجنبی نظروں سے سامنے گھر کو دیکھا۔ کیونکہ اب ہم یہیں رہیں گے، اس نے اسپاٹ پن سے جواب دیا۔ شجیحہ کو بے وجہ رونا آیا۔ آج 15 دن ہو چکے تھے لیکن سفیر کا رویہ ہنوز سر تھا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی سفیر، اس نے یاد دلانا چاہا۔ جس دن تم شایان ساگر سے ملنے گئی تھی رخصتی اسی دن ہو چکی تھی۔ شجیحہ چودھری۔ شجیحہ کو یہ الزام تڑپا گیا۔ میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی، آپ سے ملنے آ رہی تھی۔ اپنے ہر جرم ہر غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے آپ کے گھر ہی آ رہی تھی، لیکن قیوم چچا نے مجھے اس گھٹیا شخص کے حوالے کیا تھا۔ وہ رہاسی ہوئے چیخی تھی۔ بس شجیحہ، کبھی وہ تمہارے لیے نہایت اہم پسندیدہ شخص ہوتا تھا اور آج وہ تمہیں گھٹیا لگ رہا ہے۔ پٹی بندھی تھی میری آنکھوں میں سفیر، اور جب وہ پٹی ہٹی تو سب صاف دکھائی دے گیا۔ حقیقت اتنی بھیانک ہو کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ آنسو اس کی تھیلی پر گرنے لگے کیونکہ وہ سر چھٹک چکی تھی۔ سفیر لپیچتا اترا اور دوسری جانب سے آنکھوں سے باہوں میں بھر چکا تھا۔ چہرہ ہنوز پاٹ تھا۔ شجیحہ نے اس کی گردن کے گرد باہیں حائل کی اور اس کا خوبرو چہرہ دیکھا۔ رونا بھولے وہ اس کے چہرے میں کھو چکی تھی۔ سفیر نے بھوری آنکھوں سے اسے گھورا تو اس نے سٹ پٹا کر نظر بدلی، لیکن دل اب بھی اسے دیکھنے کو بضد تھا۔ وہ اس لیے اندر بڑا غیر مناسب تھا لیکن ہر چیز ترتیب سے سیٹ کی گئی تھی۔ شجیحہ کی توجہ اب گھر کی جانب ہوئی۔ وہ پاؤں سے ایک دروازہ کھول کر اندر آیا اور گرے جہازی سائز بیڈ پر اس کا وجود منتقل کیا۔ وہ جھک کر سیدھا ہونے لگا لیکن شجیحہ نے حصار نہیں توڑا۔ زیادہ سر پر نہ چڑھو، وہ سنجیدگی سے گویا بگلی پر۔ شجیحہ کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری۔ میری ٹانگوں میں درد ہے اور آپ ہیں کہ غصہ کیے جا رہے ہیں، کم از کم یہ خیال کر لیں کہ ہاسپٹل سے آئی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سفیر گھبرا گیا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ آپ کو ڈانٹنے سے فرصت ملے تو کچھ بتاؤ نا، اس سے اچھا مجھے ہوش نہ آتا۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ دانت پیسے بولی۔ ڈانٹ نہیں رہا، خفا ہوں تم سے۔ کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ بولو، کہاں سے لاتا تمہیں؟ وہ ہار گیا تھا، لہجہ پیکا تھا۔ آئی ایم سوری سفیر، مگر آپ اس روز فون نہیں اٹھا رہے تھے، دل چاہ رہا تھا سب ختم کر دوں، اس لیے مجبوراً گھر سے نکلی تھی۔ شجیحہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سفیر کو پشیمان کر گئی تھی۔ اس نے چپ چپ شجیحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ غبار نکلنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر آنسو بہاتی رہی اور سفیر اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ میں بہت بری ہوں سفیر، بہت بری، ہر مرتبہ آپ کو پریشان کیا ہے۔ تم شجیحہ سفیر خان ہو، مجھے پریشان کرنے کا حق بھی صرف تم ہی رکھتی ہو۔ اس کا چہرہ سیدھا کہ اس نے نرمی سے آنسو صاف کیے اور ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مجھ سے اب خفا نہ ہوئیے گا، اس نے مان سے کہا۔ کبھی بھی نہیں میری جان۔ اس کو ایک بار پھر سینے سے لگائے وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ شکوے رنجشیں ختم ہوئی تو ہر جانب خوشیوں کی برسات ہونے لگی۔ وحاج اب بہت بدل گیا۔ وہ وحاج کو دیکھتی شفقت نہ ہوئی جو آج کل رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ نابیہ بوکھلائی سی سارا دن اکثر کے سہارے رہتی تھی۔ پھر سے بدل گیا میں؟ اس نے برج کہا۔ ہاں جی، پھر سے بدل گئے، منہ بسورے بولی۔ تو اب بدلاؤ کے لیے کیا کرو گے؟ متبسم ہو۔ بدلاؤ کے لیے میں آپ کی امی کے پاس چلی جاؤں گی کیونکہ وہی آپ کے کان کھینچ سکتی ہیں۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ وحاج نے آج دل میں پنپتے سوال کو زبان پر لایا۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ رہنے میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہیں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، وہ اپنی دھن میں بولی۔ پر اگلے ہی پل وہ چیخی تھی۔ وحاج اسے باہوں میں بھرتا بری طرح گھما چکا تھا۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ بمشکل زمین پر ٹھہر پائی جب وحاج نے شدت سے اسے باہوں میں بھینچا تھا۔ میں نے اتنا عرصہ تم سے بے رخی برت کر اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ تمہاری سادگی، تمہاری معصومیت، تمہارا یہ مخلص پن،
हर बार तुम वहाज सुल्तान को अपना मकरूज बना देती। उसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी थी। वहाज, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? जल्द जान जाऊंगी। फिलहाल मुझे यकीन कर लेने दो कि तुमने जो कहा है वो गुमान नहीं, हकीकत है। इसकी नाक से नाक रगड़ता वो पटरी से उतरा था। हकीकत ही है, आप दूर हटे। उसने वहाज को दूर किया। वो पहले से मजीद नज़दीक आया था। वहाज उसकी मखमून अगा से घबराए। वो सीने में मुँह छुपाती लब दबा गई थी। वहाज मुस्कुराया था। ये बदलाव अच्छा है या पहले वाला? दोनों बदलाव बहुत बुरे। वो नाक सिकोड़ती बोली। वहाज की कहकी की वजह बन गई थी। वो अपनी व्हील चेयर संभालती टेरेस में आई, जहाँ उसे एक ह्योला महसूस हुआ था। सफ़ीर के आने में अभी थोड़ा वक्त था। तभी वो ताज़ा हवा के लिए यहाँ आई थी। धीरे धीरे वो इस घर में पुरसकून होने लगी थी, पर आज वो खौफजदा हुई थी। कौन है आप? शजीहा की आवाज़ में खौफ था, जबकि वो पुष्ट किए खड़ा था। एक पल के लिए शजीहा को लगा वो सफ़ीर है, लेकिन फिर उसे कोई अजनबी लगा था। इसका लिबास ऐसा तो नहीं होता था। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप घर में कैसे हैं? वो व्हील चेयर आगे धकेलती सख्ती से गोया जब सफ़ीर खान मुड़ा था। इसका हाथ बेसाख्ता मुंह पर गया। सफ़ीर आप? इसका निखरा सुलझा होलिया, मुनासिब टर्म हुई दाढ़ी, सिल्की ब्राउन बाल जो वो ऊपर की जाने बनाए हुए था, आज इनमें आयल नहीं लगा था। नफीस सी वाइट शर्ट जिसके बटन ब्लैक थे, फोल्ड स्लीव से झांकते मर्दाना बाजू और ब्लैक जीन्स पहने वो गाँव के सफ़ीर खान से बिल्कुल अलग था, बल्कि गाँव के सफ़ीर की हल्की सी भी शिबा उसमें बाकी नहीं थी। खुशबू का तेज़ झोंका शजीहा के हवास महका गया था। मेजर सफ़ीर खान। उसने अपना कार्ड सामने किया। एक और झटका इसने धीरे से दिया था। मेजर? उसे यकीन करना मुश्किल था। हाँ, कैप्टन से मेजर का सफ़र तय करने के लिए ही आज तुम्हारे सामने हो। खुशी से इसकी आंखों से आंसू बहे थे, जबकि सफ़ीर ने नफ़ी में सर हिलाया। गोया इसका रोना पसंद ना आया हो। आपने इतनी बड़ी हकीकत छुपाए रखी और मैं न जाने आपको क्या क्या समझती रही। तुम जो भी समझती थी बिल्कुल ठीक समझती थी। वो इसके करीब झुककर बैठा। शजीहा का दिल चाहे इसका चेहरा छूकर खुद को यकीन दिलाए। तभी कपकपाता हाथ इसके चेहरे पर रखा। सफ़ीर दिल फरेबी से मुस्कुराया था, और इसकी मुस्कुराहट देखती वो आज फ़र्क जान गई थी कि शायद सागर की मुस्कुराहट, इसका हुलिया सफ़ीर खान के सामने ज़ीरो था। उसने फौरी अपना सर झटका। गोया इस मनहूस साय को याद ना करना चाहती हूँ। अपना दूसरा हाथ भी उसने सफ़ीर के चेहरे पर रखा और झुककर इसकी पेशानी को छुआ, गोया इसके खूबरू चेहरे को सराहा हो। सफ़ीर सुन पड़ गया था। उसे तवक्को नहीं थी कि शजीहा कभी इसे अपने लम्ब से नवाजेगी। उसने बिना पलके झपकाए शजीहा को देखा, जो अब सुर्ख पड़ते चेहरे से इसे ही देख रही थी। तुम मेरे इरादों से भी मुझे भटका रही हो। वो लब दबाए बोला तो शजीहा भीगी आंखों से मुस्कुराती सर झटक गई थी। गोया इसका ख्याल झटका हो। तुम्हारे सब शिकवे मुझे अजबर है मेरी जान, बस कुछ दिन। वो कह नहीं पाया था, पर सोचो का महवर उसी की ज़ात थी। ज़ैनबी वहाज की कॉल आई है। जिस गाड़ी में शायान को ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और शायान भाग चुका है। ये खबर गोया सब पर बम की तरह गिरी थी। एक बार फिर सब गोया खौफ के ज़ेरे असर थे। उसने वहाज का नंबर डायल किया। दूसरी जानब से कॉल रिसीव कर ली गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है वहाज? हर जानब नाकाबंदी है, वो कैसे भाग सकता है? पता नहीं, लेकिन कोई सुराग भी नहीं मेरा। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया होगा। सफ़ीर की आवाज़ पर वो सब इसकी जाने मुतवज्जो हुए, तो उसने अपना मोबाइल सामने किया, जहाँ अननोन नंबर से मैसेज मौजूद था। मैसेज के मुताबिक उसने सबको सागर विला बुलाया था, जो कि बंद था, लेकिन शायद वो दीवार फलाकर अंदर दाखिल हुआ था। ये शायान की कोई साजिश ना हो। जैन खदशात का शिकार हुआ था, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाएंगे। सफ़ीर न जाने क्यों बज़िद था। तुम होश में हो? सफ़ीर आर्यान फड़का था। इस वक्त शायान सागर हर जानब से मौत खा चुका है। इसका बुलाने का मकसद क्या है मैं नहीं जाता, लेकिन हम सब भी समझ बूझ रखते हैं, इसे हैंडल कर ही लेंगे। ठीक है, हम वहाँ जाएंगे। सफ़ीर की बात जैन चाह कर भी रद्द नहीं कर सकता था। सफ़ीर वो जैसा मुस्कुराया था। सागर विला के सामने 4 गाड़ियाँ रुकी थी। सफ़ीर जैन वहाज पहले अंदर बढ़े। जब जहाँ लाक लगा था, वो लाक खोलते अंदर दाखिल हुए तो लाउंज सुनसान था। शायान जैन की भारी आवाज़ गूंजी थी। यही हूँ जैन चौधरी। वो अंधेरे से उबर कर आगे आया तो उसके हाथ में गन थी, जबकि वजूद भीगा हुआ था। शायान गन को नीचे फेंको। वहाज बुलंद आवाज़ में बोला। फिक्र मत करो, इसमें सिर्फ एक गोली है जो मैंने अपने लिए बचा कर रखी है। वो तलखी से बोला। तुम गन नीचे फेंको। वहाज एक बार फिर धाड़ा था। अंदर दाखिल होते सनम शजीहा और बासित गोया रुक गए थे। मेरे पास वक्त नहीं है वहाज सुल्तान। जैन ने उसे इशारा दिया तो वह आज खामोश हुआ। सब अंदर आ जाओ, आज मेरे पास मोहलत नहीं है। उसने सबको अंदर आने का इशारा दिया तो सनम शजीहा की व्हील चेयर धकेलती अंदर लाए, जबकि तबीर यजान के बराबर जा खड़ी हुई थी। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सफ़ीर ने संजीदगी से पूछा। उसने गन अपनी कनपट्टी पर रखी। कोई चालाकी मत करना। वह यजदान के बढ़ते कदम देख चुका था। भाई रुक जाए, ऐसा मत करें प्लीज़। सनम ने उसे रोकना चाहा। वो बेशक जालिम था, लेकिन उसका भाई था। अगर कोई भी मेरे पास आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने वाज़ेह धमकी दी थी। सबके कदम थम गए थे। आज गोया इंसाफ का दिन था। कुदरत ने शायान सागर का वक्त मुकर्रर कर दिया था।
शायान सागर के सताए हुए सारे लोग आज उसके सामने मौजूद थे। उसकी नज़र शजीहा पे गई जो व्हील चेयर पर मौजूद थी, और उसने तनफ्फुर से नज़र का रुख बदल दिया। तुमसे मोहब्बत की थी मैंने शजीहा, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत, लेकिन तुमने सफ़ीर को चुन लिया। मैं खाली हाथ रह गया। पापा ने सही कहा था, मैं तन्हा था और तन्हा ही रहा, और शायद तन्हा ही रहूँगा। उसने शहद रंग आंखों को सख्ती से रगड़ा। शजीहा ने सख्ती से सफ़ीर का बाजू थामा, जबकि वो लब भींच गया। शायान खुद को पुलिस के हवाले कर। तो रुक जाओ शायान। आर्यन बेबसी से गया हुआ नहीं। आर्यन, मुझे कैद से नफरत है, गुलामी से नफरत है, शिकस्त मुझे मर कर भी कबूल नहीं। तभी तो वहाँ रह नहीं पाया और भाग गया वहाँ से। उसकी मुस्कुराहट में भी हार थी। तुम पछताओगे शायान, रुक जाओ वहाँ। सुल्तान भी एक कोशिश करना चाहता था। कोई आज मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। यजदान महज खामोश खड़ा था। इस वक्त वो शायान की कैफियत समझ चुका था, जबकि जैन उसको भटकाने के लिए इर्द नज़र जमाए हुए था, ताकि इसे खुद की जान लेने से रोक सके। तुम आज भी गलत कर रहे हो, बासित पहली मर्तबा बोला जब उसने बासित को देखा। मैं कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। वो डटाई से बोला तो सब उसकी हद धर्मी पर सुलग कर रह गए थे। खैर, सारी बातें एक तरफ रखते हैं, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम सब पर बहुत जुल्म किया है, जिसका मुझे अब भी अफसोस नहीं हो। पागलों की तरह कहका लगाए बोला। इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा वहाँ मौजूद सब लोगों को हो चुका था। शायान सागर एक दरिंदा है, जिसकी दरिंदगी ताउम्र तुम लोग याद रखोगे। बोलो, रखोगे ना याद? सनम आंसू करती, जबकि आर्यन अपने भाई की बेबसी पर बमुश्किल खुद को रोने से रोक पाया था। एक राज की बात बताऊं, वो पुरस्कारियत से बोला। शजीहा, सफ़ीर खान और तुम आर्यन सागर, तुम दोनों को तकलीफ़ देते हुए मुझे शदीद अजियत हुई थी। जानते हो क्यों? शजीहा नज़र चुरा कर रह गई थी। एक मेरा इश्क और एक मेरा भाई था, दोनों से मोहब्बत बेइंतहा थी। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी शायान कि तुम अपनों को ही तकलीफ़ देते आए हो? शजीहा रोते हुए चीखी, जब कि उसने एक हज़ियाती कहका लगाया था। ये शायद सागर का स्टाइल था। शजीहा ने नफरत से झटका। वैसे माना पड़ेगा सफ़ीर खान, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। मेरी हज़ार कोशिशों के बाद शजीहा, सफ़ीर खान मेरी जानिब माइल नहीं हुई। इसके लहजे में अनकहा दुख था जो सफ़ीर खान को वाज़ेह महसूस हुआ था। शजीहा को लगा किसी ने बहुत बड़ा बोझ इसके सर से सरका दिया था। खैर, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत और मुझे मेरी शिकस्त, जिसका एतराफ़ मैं खुद करता हूँ। ज़ैन की ज़ुल्फ़ उसने ज़ैन को देखा जो लब पीछे खड़ा था। आज गोया वो दिल में दबे सब राज खोल देना चाहता था। तुम्हारी बीवी बहुत मासूम और पाकीज़ा है। इसकी निगाह में हमेशा मुझे अपने लिए नफ़रत महसूस हुई थी। इसे शादी करने वाला था मैं, लेकिन वो तुम्हारे मुकद्दर में लिखती गई थी। बल्कि मुझे ये लगता है शायान सागर किसी के भी काबिल नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा था पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और पाक औरतों के लिए पाक मर्द हैं। उसके चंद लफ्ज़ सब पर जैसे ठंडा पानी डाल गए थे। शायान, खुद को पुलिस के हवाले कर तो छोड़ दो सब बातें। फांसी की सज़ा हो चुकी है मुझे। अगर मैं खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा तो मज़ाहिका ही किया है। वो मज़ीद था। शायान भाई रुक जाए, ताबीर सिसकी थी। ताबीर, तुम पर हर इल्ज़ाम लगाने वाला मैं था, लेकिन नौफर यज़दान नामी ये शख्स तुम हर तोहमत से बचाकर रहाई दिलवा गया। ताबीर ने यज़दान की जानिब देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। खुदकशी हराम है, न दुनिया को रहोगे न आखिरत की। यज़दान बेबसी से के संग बोला। आज किसी के लहजे में उसके लिए नफ़रत नहीं थी, फ़कत बेबसी थी। खाली हाथ है मेरे, ना मैं दुनिया में कुछ बाकी, ना आखिरत के लिए कोई सामान है, इसलिए तो ये कदम उठा रहा हूँ। भाई, आपको बाबा का वास्ता है, खुदा के लिए रुक जाए। नहीं सनम, आज कोई वास्ता मुझे रोक नहीं सकता। बाबा और माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इन्हें कहना मुझे माफ़ ना करे, बल्कि कोई भी मुझे माफ़ ना करे। और शजीहा, वो रुका था। शजीहा की जान गोया हलक में आई। तुमसे मोहब्बत पूरी सच्चाई से की थी। मेरी मोहब्बत तुम चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में फ़ना हो जाऊँगा, हमेशा के लिए। उसने गर नीचे की तो सबकी जान में जान है। आगे मत आना। उसने एक बार फिर सबको रोका और पॉकेट में से लाइटर निकाला। रुक जाओ शायान। ज़ैन ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मुस्कुराया था। शजीहा को देखते उसने लाइटर कदमों में फेंका। पल में आग भड़क उठी थी। भाई, सनम दर्दनाकी से चीखी थी। बासित बमुश्किल उसे संभाल पाया था, जबकि आर्यन हाथ बढ़ाकर बेबस हुए वहीं खड़ा रह गया था। उसके कहके अब भी गूंज रहे थे। वो शख्स अपनी सफाकत की दास्तान रकम करता खुद को भस्म कर चुका था। शजीहा के लिए सब बर्दाश्त करना गोया असाबी हमला साबित हुआ था। वो एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। शजीहा, सफ़ीर उसकी हालत देखते उसकी जानिब झुका। चंद पल ही कहकों की जगह दर्दनाक चीखों ने ले ली थी। वहाँ रुकना गोया सबके लिए मुश्किल हुआ था। सफ़ीर शजीहा को लिए बाहर भागा था, जबकि बाकी सब भी बाहर की जाने बढ़े। सनम, आर्यन और बासत वहीं खड़े रह गए थे। सनम ज़मीन पर गिरने से के अंदाज में बैठी सिसकियाँ आहों में बदलने लगी और फिर बुरी तरह चीखती। आज वो अपने जालिम भाई की मौत पर रो रही थी, जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म उस पर किया था। बासत ने उसे सीने से लगाया। एक कतरा तो इसकी आंख से भी बह निकला था, जो सनम के बालों में जज्ब हुआ था। राख का ढेर बनता वो शख्स आज अपने ही बनाए गए महल में जलकर भस्म हो चुका था।
4 माह बाद आर्यन तैयार हो गए तो रोज़ अंदर आई तो आर्यन आईने के सामने खड़ा था। रोज़ को देखते मुड़ा और शहद रंग आंखों से मुस्कुराया। रोज़ की नज़र गोया उसके चेहरे पर ठहर गई थी, जो बुला कर हैंडसम लग रहा था। यू लुकिंग हैंडसम। आर्यन बोझे सा मुस्कुराया और रोज़ के पास आया। यू टू माई लव। आज इनका और जैन ज़ुल्फ़िकार का वलीमा था। 3 दिन की तरतीब से वलीमे की तकरीब रखी गई थी। तकरीब मेंशन में ही रखी गई थी, जो यज़ान की ज़िद की वजह से मुमकिन हुई थी। कल की तकरीब बासत सफ़ीर की थी और अगले दिन तबीर यज़ान का फंक्शन था। जैन का है मुझे नहीं पता, इनसे तो मुझे वैसे ही खौफ आता है। वो सर नफ़ी में हलाई बोली तो आर्यन मुस्कुराया था। वो मेरा मसीहा है रोज़। आर्यन तुम्हारा मसीहा बहुत खड़ूस है। उसने नाक सिकोड़ी। आप शायद मेरे बारे में गुफ्तगू कर रही है। जैन की गंभीर आवाज़ गूंजी तो रोज़ का रंग सफ़ेद हुआ था। न न नो सर, मैं तो बस ऐसे ही बौखलाहट के संग बोली तो आर्यन ने उसकी हालत से हिच उठाया। मुझसे इतना डरती क्यों? जैन ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। पास आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है और मुझे गुस्से से डर लगता है, उसने बगैर लगी लिपटी के कहा। तुम्हारी जरी को मार से डर लगता है और तुम्हें गुस्से से। हालांकि आर्यन वाकिफ है कि मैं कितना अमन पसंद हूँ। बिल्कुल जैन जैसा धीमे मिजाज का शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। अपना बड़ा भाई समझोगी तो मुझसे डर नहीं लगेगा। और वैसे भी अब तो मिशन ख़त्म हो चुका है। रोज़ गहरा सांस खारिज के रिलैक्स हुए सर हिलाया था। मैं ज़ुल्फ़िकार को बुलाता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। जैन मुस्कुराकर बाहर निकल गया। वह दस्तक देता अंदर आए तो आईने के सामने खड़ी थी। उसे देखते रुख मोड़ की। डल गोल्ड भारी टेल गाउन में वो नाजुक सी लड़की बिल्कुल किसी अप्सरा की मानद लग रही थी। जैन की निगाह इसकी जाने लपकी। वो गोया पलटना भूल गई। कने बालों को लूज कर्ल किए एतराफ में फैलाया गया था। सर पर छोटा सा क्राउन और गले में बारीक नेकलेस था। वो लड़की आज पहली मर्तबा इस तरह का हार श्रृंगार किए सीधा जैन चौधरी के दिल को फतह कर गई थी। जैन आगे बढ़ता उसके सामने रुका। कत्ल का इरादा है? वो होंठ खोल के बोला तो जरी ने दहल कर इसके होंठों पर अपना हाथ रखा। ऐसी अदाओं से मजीद जान निकालोगी? वो गंभीरता से बोला। सैन कैसी बातें कर रहे? वो रुहासी हो चुकी थी। बाखुदा ऐसा लग रहा है कि चाँद मेरे सामने आ ठहरा है। अब अपने हर रूप में तुम नए सिरे से दीवाना बना देती हो। कि संजीदा सा जैन चौधरी खुमार में मुब्तला हो जाता है। उसकी लड़का उंगली पर लपेटे हुए से अपने करीब कर चुका था। जैन देर हो जाएगी, फिर हमें गाँव भी तो जाना है, उसने रसानी से कहा, जबकि दिल शिद्दत से धड़क रहा था। जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन नस्म नुमानी है। उसकी दोनों हथेलियाँ छूकर उसने ज़ुल्फ़िकार का चेहरा देखा और फिर इस बात में सर हिला दी। उसकी कमर में हाथ डाले वो इसे लिए बाहर की जाने पड़ा था। 4 माह बाद पर्पल पर्ल की तीता से मैक्सी पहने वो आज फिर आर्यन का इंतजार कर रही थी। आज भी वो बेड पर बैठकर इसका इंतजार करने के बजाय चक्कर लगा रही थी। अपनी शादी की रात याद आई तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। आर्यन आज भी खिलाफ तवक्को लेटता। तभी वो कमरे से निकलती टेरिस में आ गई ताकि कुछ लम्हे खुली फजा में गुजार सके। खुली फजा में सांस खींचकर वो रेलिंग के पास खड़ी हुई थी जब अपनी कमर पर किसी सख्त चीज़ की नोक महसूस हुई। वो पल में समझ गई थी कि वो गन की नाल है और फिर किसी ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू लपेटे। उसके चेहरे पर खौफ फैला था। कका कौन? वो सरसराते लफ्ज़ों से बोली। मुकाबिल खामोश रहा। हु आर यू एंड वट यू वांट? उस अपने डर पर काबू पाए वो बहादुर बनी। यू एवर थिंक योर लव योर लाइफ एंड वांट यू ईच वन एवरी टाइम? इस कलम से और इसकी आवाज़ ने रोकती सांस को बहाल किया और नन्ही नाक पर गुस्से का असर दिखाया। रोज ने कोहनी उसकी पसी पर मारी हुई कान उसके हाथ से चिपट कर सीने पर जमाई। आर्या ने लब खोल किए गोया इसकी हरकत से मुतासिर हुआ। वो वक्त और था, हालात मुख्तलिफ थे जब मैं इस गन से डरती थी। अब वक्त ज़रा मुख्तलिफ है। नाउ माई लव माई लाइफ विद मी, उसने इश्तियाक से कहा। ओ, आर्यन मुतासिर हुआ था। यस, उसने गन को मजीद सीने पर जमाए कहा तो आर्यन मुस्कुराया था। चला दो गोली, आर्यन ने गोया से उकसाया जब भी उसने गन को दूर फेंका। गोया इस कान ने बिच्छू की तरह डंक मारा। तुम डर गई थी, आर्यन ने गोया उसे जमाया। गन से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन तुमसे लगता है आर्यन, तुम्हारे दूर जाने से लगता है। इसने तवक्को के बरक्स जवाब दिया था। वो तो आंसुओं की उम्मीद कर बैठा था, लेकिन यहाँ मामला ये अलग था। इसके डायलॉग पर आर्यन का कहका फजा में गूंजा। आई एम इम्प्रेस्ड, उसने सरगोशियाना कहा। डार्क पर्पल मैट लिपस्टिक से सजे उसके अलावा मुस्कुराहट में डल गया। आर्यन ने उसके लबों पर अंगूठा से लाया तो लिपस्टिक हल्की सी बिगड़ गई। रोज पल के चुकाती आर्यन को मजीद बहकाने लगी थी। उसने थोड़ी थाम का चेहरा बुलंद किया। मेरे साथ चलोगी? उसने आज फिर सवाल पूछा था, जिसका उसने बिला तवक्कुफ जवाब सरस बाद में हिला दिया। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया जिस पर रोज ने अपना हाथ रखा। आर्यन ने मुट्ठी बांध की। पूछोगी नहीं कहाँ जाना है? मेरा हाथ पकड़कर जहाँ लेकर जाओगे आंखें बंद करके मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। इतना यकीन है मुझ पर? था नहीं, हो गया है, लेकिन क्योंकि बेयकीनी की एक वजह भी आपने रहने नहीं दी, उसने अपने लबो लहजे में जवाब दिया। आर्या ने उसके हाथ पर पुश
हाथ पुश्त पर लब रखे और उसका रुख पुश्त मोड़ कर पुश्त को अपने सीने से लगाया। हाथ हनूस थामा हुआ था। इसके हाथ में मौजूद वो रिंग छूता उसे तफसील बताने लगा। यूनिवर्सिटी में मेरी जॉब कन्फर्म हो गया। एक बार फिर वो सफ़र शुरू हो चुका है जो मैंने खांसी की वजह से छोड़ दिया था। इट्स मीन प्रोफेसर, रोज़ ने जवाब चाहा, जबकि उसकी जॉब का सुनकर वो वैसे ही खुश हो चुकी थी। यस, और इस बदमा मेरी पहली स्टूडेंट तुम बनोगी। उसके गाल से गाल जोड़े वो हल्का सा झुका था। इट विल बी ऑनर फॉर मी। उसके जवाब पर आर्या ने कान हल्का सा रगड़ा और आंखें बूते रोज़ की खुशबू में सांस भरा। बट आई समथिंग। चंद पल बाद वो बोली तो आवाज़ में हल्की सी झिझक थी। जो दिल में है सब कह दो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। बट रोज़ ने लब का कोना दबाया। नौफर यज़दान का साथ तुमसे कभी नहीं छीनूंगा, क्योंकि मसीहा हर कोई नहीं होता, और जो मसीहा बन जाए इन्हें कभी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। जब दिल चाहा, जिस वक्त भी दिल चाहा, बस हुक्म करना, बंदा हाजिर होगा। उसने रोज़ को हल्का से घुमाया तो वो घूमकर आर्यन के कंधे पर हथेली जमा गई थी। आर्यन ने दोनों हाथ कमर पर बांधे तो पीछे की जानिब झुकी और आर्यन उसकी जानिब झुका। दूर से वो किसी फेरी टेल स्टोरी का हिस्सा मालूम होने लगे थे, जैसे कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को थामे खड़ा था और इर्द गिर्द मावराई माहौल हो। बट वो खिलखिलाई थी, समझ तो वो गई थी। इट्स मीन के उसने सांस लिया। तुम ऑर्डर करना, अपना दिल अपनी हथेली पर रख दूंगा, बशर्ते कि दिल मांगोगी तो करीब होकर मांगना। आर्यन की गहरी जुमैनी सरगोशी और आंख को दबाना और उसे पटाई थी। सर्दी लग रही है, कमरे में चले। वैसे भी सर्द मौसम मुझे पसंद नहीं है। उसकी मखमून और काका मफहूम समझती हुई इनकी देखे बोली, हालांकि सर्द मौसम उसका पसंदीदा था। मेरी पनाहों में आज जो सर्द मौसम है, में मज़ीद अच्छा लगने लगेगा। आर्यन ने उसे सीधा किए करीब किया। उसने सीने पर अपनी हथेलियाँ रखी। आपको कैसे पता? तुम्हारे बारे में हर फर्क पड़ा है। रोज़ का सर्दी से गुलाबी होता चेहरा इसकी सरगोशी पर मज़ीद सुर्ख हुआ। ब्लशिंग। आर्यन मुतजस्सिस हुआ। नेवर। इसके सीने पर हाथ रख उसने महज यही कहा। इसके जवाब पर आर्यन मुस्कराया था और फिर अपनी मताए जा को बाहों में से बैठ लिया था। गम तकलीफ़ात का खात्मा और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फिर से होने लगा वो था, जो इनकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर देने वाला था। अगले दिन की शाम ने गोया महफिल में आग लगाई थी, क्योंकि दोनों दुल्हनें एक तरफ और दूल्हे एक जानिब थे। लगता है इन्हें दुल्हनों से ज़्यादा एक दूसरे में दिलचस्पी है। सनम ने शिकवा किया तो शजीहा ने अफसोस से सामने देखा। जब अब्बास सफ़ीर के कोट के बटन बंद कर रहा था, सफ़ीर उसके बालों को सेट करने में मगन था। आज तुम दोनों का नहीं, तुम्हारी बीवियों का भी वलीमा है। जैन ने दोनों के पास आए दांत पीस कर कहा तो दोनों चौंके थे। हमें पता है, सफ़ीर टटाई से बोला, जबकि कैमरामैन बेजार से खड़े थे। तो कमीने आदमी बीवी के पास जाए या फिर भाई के साथ फ़ोटोशूट करवा ले। ऐन वक्त पर मेरे अब्बा हजूर का इरादा बदल गया तो मुझे इल्ज़ाम मत देना। तेरे अब्बा हजूर को मैं पटा चुका हूँ, इसलिए रिलैक्स हो। उससे गोया फ़र्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तू रह अपने भाई के साथ मसरूफ़, मैं शजीहा को ले जाता हूँ। अबे यार क्या कह रहा है, जाता हूँ ना। सफ़ीर गोया लाइन पर आया। चल बासत फ़ोटोशूट करवाते हैं, वरना ये मेरा कमीना साला कहीं कमीनगी ना दिखा दे। कमीने, तुझ में भी यज़ान की रूह आने लगी है। मत भूल के मैं तेरा जिगरी यार हूँ। जैन ने एक धमोका उसकी कमर में चढ़ा, वो कराह कर रह गया। बासत की नज़र सनम पर गई। उसने मुंह बनाए रुख बदला। तेरी और मेरी बीवी पक्की दोस्तें हैं। ऐसा ना हो कि वो दोनों मिली भगत करते हमें पागल बनाए। हमें इनके पास जाना चाहिए। सफ़ीर ने तायती अंदाज में सर हिलाया। अब दफ़ा हो जो, वरना मैं कुछ ज़रूर कर दूंगा। जैन दोनों को घूरता ज़ुरे फिजा की जाने पड़ा। कुछ देर बाद सफ़ीर और बासत भी एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने अपने दुल्हनों के पास मौजूद थे। मेरी बेटी का ख्याल रखना सफ़ीर खान, वरना शजीहा को मैं वापस भी ला सकता हूँ। उन्होंने शजीहा के गिर्द हाथ फैलाए, कहा तो भीगी आंखों से मुस्कुराई। 4 माह का सबूत कम है सुसर जी। सफ़ीर दांत पीसता बज़ाहिर मुस्कुराया था। तभी तुम पे एतबार कर रहा हूँ। अदाए बेनियाजी से गोया हुआ था। अपने बाप को समझा दे, वरना इनकी और मेरी जंग पक्की है और तेरी मेरी दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। बेगैरत आदमी, तू मेरे बाबा की वजह से हमारी दोस्ती को खतरे में डालने की बात करे। जैन ने दांत पीसे। यही सब ज़िस्तान का सर है। वहाज ने अपना हिस्सा डाला। साले साहब, आप मेरी ज़ुबान ना ही खुलवाएं तो अच्छा। यज़दान ने हिसाब बराबर किया। यज़दान, मौका महल तो देख लिया करो। वो दबा दबा घुराई थी। हमेशा मुझे ही गलत ठहराइएगा। वो आंखें घुमाता वहाँ से वॉकआउट कर गया था। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी का रक्स था। शजीहा बाप के सीने से लगती आज नए सफ़र पर गामजन हुई थी। सनम, वो दरवाज़ा बंद किए सदमे की ज्यादती से चीखा। वो जो आईने के सामने खड़ी ज्वेलरी उतारी थी, टहल कर मुड़ी। चामा खून हुआ नजरों से उसे घूर रहा था। क्या हुआ बासत? उसने हैरानगी से पूछा। तुम नहीं जानती क्या हुआ? उसने दांत पीसे कहा। आप बताएंगे तो पता चलेगा। शानिश काका और मुड़ी को या परवाह ना हो और एक बार फिर एयरिंग उतारने लगी। बासत तेज कदमों से आ गए। उसे कंधों से जकड़ कर रुख मोड़ता सुर्ख होती आंखों से घूर कर रह गया।
آپ کی یہ کالی نیلی پیلی سرخ آنکھوں کا وار مجھ پر نہیں جا سکتا، جلدی بتائیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایک تو آج کا فنکشن اتنا لمبا ہو گیا تھا، اوپر سے آپ بنا بات کے غصہ کر رہے ہیں۔ باسط کو اس کے انداز پر حیرانگی ہوئی۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر تم سونا چاہتی ہو؟ کون سے ارمان؟ 4 ماہ بعد ولیمہ ہوا، اب کون سے ارمان باقی ہیں؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو باسط کو مزید طے چڑھے، لیکن وہ ضبط کرتا کھڑا رہا۔ جذبات سے آ رہی لڑکی بڑبڑا کر وہ دور ہوتا بیڈ پر جا کے لیٹ گیا۔ جوتے اتارنے کی بھی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ سند نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور مڑ کر باسط کو دیکھا جو کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ سنم نے ڈریسر پر موجود چند چوڑیوں کو دوبارہ رکھا، گویا ساری چوڑیاں اتار دی ہوں، اور جویلری کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا ہے۔ لیکن پھر واپس پہن کر اس نے گہرا سانس لیا۔ گو کہ تھوڑا مشکل تھا، لیکن وہ آج باسط کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اپنی لانگ میکسی کو چٹکیوں میں بھرتی بیڈ پر آئی۔ اف، آج تو بہت تھک گئی، چینج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تھکن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ باسط دیر محسوس کیے لیٹا رہا، لیکن پھر اپنے بازو پر دباؤ محسوس ہوا تو آنکھیں کھولی، لیکن مڑا نہیں۔ باسط نے اپنا بازو جھٹکا، پر وہ تھوڑی جمائے اس کے گرد اپنے بازو بھی پھیلا چکی تھی۔ پر نیند کے لیے تو نرم سا تکیہ ہونا ضروری ہے، کسی کی پرسکون باہیں ہونا ضروری ہے۔ اس کی خمار آلود سرگوشی نے گویا جذبات کی آنچ میں اضافہ کیا۔ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی، اس نے وہی حرف آزمایا، جبکہ دل مچل رہا تھا اسے باہوں میں لینے کو، اس کے حسن کو سراہنے کو، لیکن وہ سارا ہار سنگار پر بات کر چکی تھی۔ پر مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی، اسے جان بوجھ کے چوڑیاں کھنکائی تو باسط نے غور سے اس کے بازو کی جانب دیکھا جہاں چوڑیاں موجود تھیں۔ مجھے آ رہی ہے، سو جو۔ چوڑیاں دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ محض اسے ستانے کے موڈ میں تھی۔ کیا سونے کی رٹ لگائی ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے آج میری طرف نہیں دیکھا اور نہ میری تعریف کی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ولیمے کی دلہن میں نہیں، آپ کا بھائی سفیر خان تھا۔ وہ چڑھ کر گویا ہی تو باسط سیدھا ہوا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا اس کے سینے پر گری، پر غصے سے وہ سینے پر ہتھیلی رکھتے اٹھنے میں کوشاں ہوئی۔ سینے پہ گولی لگنے کی وجہ سے وہ اب بھی احتیاط کرتی تھی، لیکن باسط نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سو جائیے آپ، وہ دانت پیستے گھرائی۔ ابھی تو باہوں میں سونے کی باتیں کر کے مجھے رومانٹک وائبس دے رہی تھی، اور اب چڑیل بن گئی ہو۔ کیا آج روز کی قسط تم پوری کرو گی؟ کیا چڑیل؟ اس نے ناک پھیلا کر باسط کو دیکھا۔ مطلب کا لفظ پکڑا ہے، باقی لفظ تو جیسے میں نے دیواروں سے کہے تھے۔ باسط نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا، جس وجہ سے وہ مزید باسط کے قریب ہوئی۔ اس کا دو آتشہ حسن مزید قریبی سے دیکھتے وہ پل کے لیے خاموش پڑ گیا، جبکہ آنکھوں نے تعریف کی تھی۔ ڈل گردیدہ زیب میکسی میں وہ آسمان سے اتری کسی حور سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مانگ ٹیکا کے ساتھ اس نے نازک سی جویلری پہنی تھی۔ لبوں پہ پھیلا وہ ہلکا شوخ رنگ اس کے حسن کو آخری کڑی ثابت ہوا۔ آج وہ اگر اسے اسپرا کہتا تو غلط نہیں تھا۔ صنم کی گھنی پلکیں عارض پہ آ چکی۔ باخدا، جس طرح آج میں نے تمہارا حسین روپ نظر انداز کیا، یہ میرا دل جانتا ہے۔ میں تسلی سے تمہیں ان آنکھوں میں جذب کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہے، لیکن تم میری امیدوں پر پانی پھیرنے کی ساری تیاری کر چکی تھی۔ آخری لفظ اس نے سلگ کر کہے، صرف آپ کو ستانے کے لیے۔ بدلہ بھی تو لینا تھا، وہ بھی اترائی تھی۔ میں بدلہ لینے پہ آیا تو تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس کی گمبھیر وجود کو دہکا دینے والی سرگوشی نے صنم کو خفت سے لال کیا، اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ ایک پرسکونی سے وجود میں پھیلی تو باسط نے اس کا سر بلند کیا اور اس کا حسین چہرہ نگاہ میں بھرنے لگا، یوں نظر چرا کر چہرہ چھپا کر، آج میرے جسموں کی آنچ سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ آج قسمت سے سلگنا لکھا ہے تو لکھا ہی ہے۔ ایک اور جان لیوا سرگوشی اور صنم کے گالوں میں گویا کسی نے تپش بھڑکا دیا۔ اب ایسی باتیں مت کرے، بلکہ دوبارہ جھک گئی تھی۔ پھر کیسی باتیں کرو، اس نے لب دبایا، جبکہ وہ اس کی زمینی باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ چھوڑیں آپ، اچھا تھا آپ کے آنے سے پہلے ہی تم ایسا کبھی نہیں کر پاتی۔ باسط نے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ بڑا یقین ہے؟ صنم نے ہونٹ گھمائے، گویا یقین نہ ہو۔ ثبوت سامنے ہو تو پھر یقین کی گواہی کس لیے؟ اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوتے اس نے صنم کا سر تکیے پر رکھا اور خود اس کی جانب جھکنے لگا۔ صنم نے شرما کر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ باسط بدمزہ ہوا تھا، پر اس کے ہاتھوں کی جھری سے دیکھنا اگلے ہی پل اسے مسرور بھی کر گیا تھا۔ باسط نے اس کے کانوں میں پہنے ایئر رنگز اتارے تو اس نے ہاتھ ہٹا کر باسط کو دیکھا جو لبوں پر شریر مسکان پھیلائے ہوئے تھا۔ میں خود اتار لوں گی، آپ رہنے دیں۔ اس نے کان کی جانب ہاتھ بڑھایا جب باسط نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ کونی کے بل جھکے اس نے تکیے کے قریب سے کچھ اٹھایا اور صنم کی نگاہ کے سامنے کیا۔ صنم کی آنکھوں میں خوف اترا تھا، وہی جھمکے تھے جو اس دن ان کی موت کا سامان بن گئے تھے۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی، صنم نے سرعت سے انکار کیا۔ یہ جھمکے تمہیں کبھی خود سے جدا ہی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جان کی بازی لگا کر یہ تم تک لایا ہوں۔ اسی لیے تو پہننا نہیں چاہتی، کیونکہ ان جھمکوں سے خون آلود یادیں جڑی ہیں۔ شایان سا اگر آج پھر اپنے ظلم سمیت یاد آیا تھا، ان یادوں کو بھول کر ہم ان جھمکوں کے سنگ اچھی یادیں بھی تو بنائیں گے۔ مجھے نہیں بنانی، ان کی وجہ سے ہی آپ سے دور ہوئی تھی، اور اب یہی جھمکے ہمیں قریب لائے گی۔ اس نے کان میں وہ جھمکا پہنا تو صنم کی آنکھ سے آنسو نکلا،
जिसे वो लबों से चुनता, दूसरे कान में भी झुमका पहनाते, दूसरे आंसू को भी चुन चुका। सनम ने सिसकियां रोकते रुख बदला और इसके गिर्द अपने बाजू हाल किए तो बाजत ने किसी बिखरे मोती की माने इस लड़की को खुद में समेट लिया। सितारों की माने चमकते वो कीमती स्टोन्स दोनों पर अपनी रोशनी फैलाए आइंदा जिंदगी में खुशियों की नवीं सुनाने लगे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो ताबीर ने गोया सांस बाहर की। यजदान ताबीर को देखता दरवाज़ा खोलने पड़ा, जबकि ताबीर की नज़र भी दरवाजे पर जमी। दरवाज़ा खोले वो एक जानिब हुआ और फिर उसकी आंखें हैरत से फैली, इनमें नमी उभरने लगी, लबों पर भीगी सी मुस्कान थी। वो आगे बढ़ी और बाहें फैलाई खड़े कमाल मलिक के सीने से लगी। इस एक हसार के लिए उसने 29 साल गुजारे थे और आज जब इसकी औलाद दुनिया में आने वाली थी, मोहब्बत भरी बाहें नसीब हो गई थी। इतनी देर करती बाबा, इतनी देर कौन करते? इसकी शिकवा का नाम आंखों से यजदान को बेचैन किया। वो कभी भी ताबीर को किसी के लिए भी आंसू बहाते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने पापा को माफ़ कर दो ताबीर, तुम्हारे पापा में हिम्मत नहीं कि तुम्हारा सामना करने की। ऐसे मत कहीं बाबा, एक बार पुकारते आपकी बेटी खुद आपके पास आ जाती। उसने बाप के सीने से सर उठाया। नहीं ताबीर, इस मर्तबा मुझे आना था अपने हर गुनाह का इजाला करने के लिए। ताबीर ने नम आंखें रगड़ी। कोई इजाला नहीं पापा, आप आगे मेरी हसरत पूरी होगी। हमें यहाँ लाने वाला भी यजदान है। उन्होंने यजदान को अपने बराबर खड़ा किया और इसके कंधे के गिर्द अपना हाथ फैलाया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जिसने तुम जैसे शख्स को मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिया। उन्होंने पूरी सच्चाई से कहा। यह आपकी मोहब्बत है अंकल, यजदान बताने से बोला, जबकि ताबीर ने यजदान को देखा और आंखों में गोया सुकून उतर आया था। बाप से ही मिलती रहोगी या फिर माँ से भी मिलोगी? नजमा बेगम की आवाज़ पे वो चौंकी। एक बार फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार माँ ने इन आंसुओं को बेमोल नहीं होने दिया था। बहुत मुबारक हो, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा आबाद रखे, अल्लाह औलाद का सुख देखना नसीब करे। इसकी पेशानी छुए उन्होंने इसे कई दुआओं से नवाजा था। हनीम आपी कहाँ है अम्मी? सब आए हैं नीचे, अरुशे भी आई है, सलमान और बाकी सब भी। अरुशे के नापों से धड़का हुआ था, लेकिन फिर खुद को संभालने मुस्कुराई और यजदान समझ चुका था कि अरुशे के हवाले से वो खदशात का शिकार है। सब नीचे पड़े तो यजदान ने ताबीर को देखा, अरुशे के हवाले से परेशान है। तब तुम कैसे जानते हो? आपका चेहरा बता रहा है। यजदान ने उसका गाल से लाया। नहीं वो कुछ नहीं, उसने खुद ही ख्याल झटक दिया। जैसे आपकी मर्जी, चले नीचे। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ताबीर ने इसके हाथ थामा और नीचे की जानिब बढ़ा।